school, most probably. And then she went on to do her bachelor's in Lahore from the National College of Arts in architecture. And then she was working for a while, I believe, with the Aga Khan Culture Services, if I'm not wrong. Or was it Kashif who was working with them? It wasn't AKCSP for me, Yeah. So then she went on to do her master's through the DRD program in Germany. And afterward, she went to do her PhD. Now she is at the University of Cambridge doing her PhD in what's the program called there? So I'm based in the Center for Smart Infrastructure. Mhm. So my PhD is focusing on planning and decision making in flood resilience infrastructure projects. Oh, that's great. That's Yeah. great. Yeah. So maybe you can elaborate on your PhD now, and then I'll take you back in time. Yeah, sure. Hello everyone. उर्दू में बात करूँ तो सही है? सब Yeah, इजी yeah. है? हाँ, ठीक है. So, thank you, Mahmood, for the introduction. Basically, मेरा जो NCA से मैंने आर्किटेक्चर पढ़ा, महमूद was my junior, और 5 साल का हमारा कोर्स होता है. और उसके बाद ऑफ कोर्स एक स्कॉलरशिप की तलाश में, जैसे आप सारे स्टूडेंट्स भी इसी स्ट्रगल में होंगे, क्योंकि मुझे सेल्फ फाइनेंस पे नहीं करना था. It's quite difficult for the people, for the students from our region, also, तो this is the reality कि हम ज़्यादा scholarships की तरफ ही ऑप्ट करते हैं, which is fine. Of course टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, but I think it's doable. तो कोई 4 साल लगे. I was working great, और वो सारा sponsored था from DAD. So it's an amazing scholarship program, and also it's really good when you have like family, which is not that common. लेकिन I would really like to share that I had my first kid when I was doing that master's program, which was quite challenging. But of course, with the support of DAD and everything, it was doable. तो पहला साल हमने जर्मनी में गुजारा, फिर तंजानिया गए. वहाँ पे सारा 1 साल कोर्स वर्क भी था, साथ में फील्ड वर्क, और कुछ स्टूडेंट प्लेसमेंट्स होते हैं वहाँ के लोकल गवर्नमेंट के साथ. um yeah, and then I went back to Pakistan. I'm sharing this whole journey just to um just to make you understand the whole process. Yeah, yeah, sure. Sorry, it's a Sunday and my kids are home, तो Okay. थोड़े शोर वाली आवाजें आएंगी आपको. नहीं नहीं, it's Anyway, fine, it's fine. तो डीएडी स्कॉलरशिप, क्योंकि जर्मनी में मास्टर्स के बाद तंजानिया गए. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि जर्मनी में डीएडी पे पढ़ के फिर वो लोग वहाँ वहीं पे रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं. Blue बट Moon. मेरे केस ये था कि मेरा सेकेंड ईयर तंजानिया में था, विच वाज आउट ऑफ जर्मनी. तो इसलिए हमारे पास वो ऑप्शन नहीं थी. But I was fine with that. I went back to Pakistan. I worked there with Mott MacDonald, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है. और मैंने अपनी लाइफ के बहुत ही एक्साइटिंग प्रोजेक्ट पे काम किया, which was गिलगित सिटी मास्टर प्लान. And I was kind of second lead of that project. I was working as a senior urban designer, और मुझे मौका मिला कि मैं हैंड्स ऑन काम करूं गिलगित के डेवलपमेंट पे और गिलगित के मास्टर प्लान पे.
अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन एंड ये जो सारी पॉलिटिक्स होती हैं आप सबको पता है गवर्नमेंट की, उसकी वजह से प्रोजेक्ट आगे जा नहीं सका, बट दैट वाज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट विच वी डिड with the help of a lot of like international experts. But anyway, after that 1 year of experience in Pakistan, I then applied for my PhD at University of Cambridge. और ये जो फंड जो था फंडिंग जो थी वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल एशिया और कैम्ब्रिज ट्रस्ट की फंडिंग है. So yeah, now I'm here at the civil engineering department and I'm almost done with my second year. Okay, So perfect. that's my story in short. Yeah, thank you. So I'll take you back in time because we will more focus on your master program at the with the DRD. So can you tell us about the process and how it actually started and what made you, go to apply for this program? I mean, you already mentioned that, we don't come from very influential background or having, the finances at our backs that we can spend on education, but we search for scholarships and we try to make sure that we get some sort of funding from somewhere in order to pursue our career. So what was the spark behind your idea of getting to Germany and applying for DRD? एक तो ये कि मैं अ, क्योंकि पाकिस्तान में मैं कुछ डेवलपर्स के साथ काम कर रही थी. तो डेवलपर्स के साथ जब आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हो तो थोड़ा सा आपको वो एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आपको हिट करता है कि आपको इस तरह का काम नहीं करना था. कॉन्ट्रैक्टर्स और कंस्ट्रक्शन का जो टिपिकल आप अमीरों के लिए घर बना रहे हो और इंटीरियर्स बना रहे हो और आंटियां आपको स्टार प्लस के इंटीरियर्स दिखाते हैं कि भाई हमें ये इंटीरियर चाहिए. तो मुझे था कि मुझे ये काम नहीं करना. आई मीन पैसा आप कमा सकते हो उस काम में लेकिन कोई सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी. तो दैट्स व्हाई आई ऑप्टेड टू डू दिस मास्टर्स जो कि था स्पेशल प्लानिंग, मतलब के रीजनल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग और मास्टर प्लानिंग के बारे में ये कोर्स है. और ये डीएडी ईपॉस प्रोग्राम होता है. मैं आपको लिंक ये चैट में अभी शेयर करती हूँ बल्कि मैं पहले शेयर कर लूँ ताकि मैं भूलूं नहीं. So that all of you have that link. It's specially designed for these this program is specially for developing countries और उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं. Wasim, can मैंने you turn off your I want to take some from this pepper? मैंने Is this chili masala? Yeah, yeah. Is it chili powder or Yeah, sorry. तो ये जो ईपॉस प्रोग्राम है ये स्पेशली डिजाइंड है डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए. और जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है, इफ यू वांट आई कैन आल्सो शेयर इट ऑन माय स्क्रीन महमूद. Yeah, sure, sure. या जस्ट गिव मी अ सेकंड. मैं इस लिस्ट को ना आप सबके साथ शेयर करती हूँ. ओके सो आई थिंक यू नीड टू गिव मी एक्सेस Yeah, टू शेयर. I'll make you the host for या now. आप इस लिंक पे क्लिक करके उस लिस्ट को कर सकते हो I शेयर. made you the host for now, so then later you can ओके you can श्योर. switch. ओके प्लीज लेट मी नो व्हेन यू सी दिस लिस्ट. Yeah. आप सब लोग देख सकते हो इस लिस्ट को. गिव मी अ थम्स अप. ओके तो ये आप देख सकते हो. ईपॉस प्रोग्राम पे मैं पर्टिकुलरली इसलिए फोकस कर रही हूँ. डीएडी के बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हैं लेकिन ईपॉस मास्टर्स का जो प्रोग्राम है इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि इस पे मेरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है और मैं खुद इसी प्रोग्राम का हिस्सा थी.
इसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक साइंसेज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड साइंसेज, रीजनल एंड अर्बन प्लानिंग, agriculture and forest sciences, nature and environmental sciences, medicine, public health, social sciences, media studies. अब आप आपको ऑफ कोर्स अपने फील्ड से रिलेटेड जो कोर्स है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपके फील्ड का कौन सा रिलेटेड कोर्स है इन सब कैटेगरीज में। और इसका बिफोर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप आपको ये चीज समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस स्कॉलरशिप का या जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है उसका मैंडेट क्या है, उसका मकसद क्या है। तो ये जो ईपॉस प्रोग्राम है डीएडी का, दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज, जिसका मतलब है कि कोर्सेज उस तरह के हैं जो कि आपके डेवलपिंग कंट्रीज में काम ज्यादा आ सकती हैं। इन आसान अल्फाज में अगर मैं ये बयान करूँ, तो जिन जिन फील्ड्स का सबसे ज्यादा स्कोप है और सबसे ज्यादा मतलब जरूरत है हमारे उधर, फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्मॉल एंटरप्राइज प्रमोशन एंड ट्रेनिंग, जैसे मास्टर प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। तो ये सारे उस तरह के कोर्सेज हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या हमें प्रोफेशनल्स की ज़्यादा ज़रूरत है इन सब फील्ड्स में। नाउ व्हाइल यू आर सिलेक्टिंग द सेल्फ, उसमें आपने ये देखना है कि शायद ये जरूरी नहीं होगा कि एग्जैक्टली जो आपने बैचलर्स किया है या जो अंडर ग्रेड किया है वही कोर्स आपका मास्टर्स में भी कंटिन्यू हो। आप ये Naila, if you देखोगे। can, if you can, or Sabui, you can you mute Naila Hussain because um, just a second. Oh, where is it? I'm doing that. oh, okay, Um, perfect. video में। I don't know why I can't mute Hassan, but okay. Um, तो ये जो प्रोग्राम्स हैं, ये जैसे मैंने बताया कि इनको क्या बात कर रहे थे हम, जब आप Developing सिलेक्ट countries करोगे। के लिए ये programs. हाँ, तो उसमें ना जब आप अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी बना रहे हो ना, जब वो डेवलप कर रहे हो, तो उसमें ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आप अपना जो मोटिवेशन है, अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स, शॉर्ट टर्म प्लान्स जो आप उसमें बता रहे हो, आ, वो कुछ इस तरह से अलाइंड हो इन इन प्रोग्राम से कि जिससे ये नजर आए कि आप यू आर इंटरेस्टेड इन गिविंग बैक टू दैट कंट्री। सो फॉर एग्जांपल, मैं अपनी एग्जांपल आपको देती हूँ कि रीजनल प्लानिंग में या अर्बन प्लानिंग में जैसे जब जब वो पर्सनल स्टेटमेंट का जब पार्ट आता है, सो व्हेन आई वाज राइटिंग दैट आई हैड टू डू सम रिसर्च कि हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की है इन अर्बन प्लानिंग। तो उसको मैंने रिलेट किया सस्टेनेबिलिटी के साथ, क्लाइमेट चेंज के साथ, जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, हैजर्ड अर्बनाइजेशन हो रही है, और उनकी वजह से जो डिजास्टर्स में इजाफा हो रहा है। तो उस चीज़ के साथ जब रिलेट किया तो इट मेड मोर सेंस। तो जब इवन अब जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें भी आप ये बता सकते हो कि ये कोर्स आपने इसलिए चूज किया है क्योंकि आपके मुल्क में इस चीज की ये जरूरत है। आप सिर्फ अपने आप को फायदा देने की बात नहीं करते। whenever you are applying for a scholarship, always remember कि वो जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो सिर्फ आपको एज एन इंडिविजुअल डेवलप करने के लिए नहीं होता, बल्कि आप एज एन एजेंट फॉर चेंज, किस तरह से आप वापस जाके चेंज कैसे लाओगे, वो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपके जब पर्सनल स्टेटमेंट में आप लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल
मैं अगर ये लिखती कि मैं आर्किटेक्चर या अर्बन प्लानिंग पढ़ के वापस जाऊंगी, मैं अपना एक बिजनेस डेवलप करूंगी और उससे हाउसिंग सोसाइटीज बना के बहरिया टाउन की तरह या कुछ इस तरह मुझे पैसा ज्यादा कमाना है या मुझे बिजनेस में ज्यादा वो होगा, फायदा होगा, तो वो शायद इतना सेंस ना बनता कि आप इतना एक रिसर्च फील्ड में आते हो, आप एक एकेडमिक सारा वो एक पूरे एक प्रोसेस से गुजरने के बाद भी आप अगर वापस आके आप सिर्फ बिजनेस माइंडेड हो और एक तरह का लीनियर सोच रख रहे हो, तो उसमें इतना फायदा नहीं है। तो जो भी आपका फील्ड है उसको आपने कनेक्ट करना है विद अ प्रॉब्लम इन योर रीजन और इन योर एरिया ऑफ स्टडी, और आप उस प्रॉब्लम को इस स्कॉलरशिप के बाद या इस मास्टर्स के बाद कैसे हल कर रहे हो, और ये जो मास्टर्स मास्टर्स का कोर्स है ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इन द शॉर्ट टर्म और इन द लॉन्गर टर्म। तो वो आपने बेसिकली बताना है, उस पे ज्यादा फोकस करना है। अम, तो इसमें अब थोड़ा प्रोसेस की तरफ आ जाते हैं कि क्या Sabui, process I'll होता है। just interrupt you here, and Yeah. because we have, students from different background, and I really like the fact that कि जो आपने बताया कि you need to make, an in-depth research before even applying, and it helps you write your personal statement, and at the same time, it helps you, with the interview and everything to go through the process. So we will now just start with the process that the list that you were sharing, are these the universities that the program recommends, or are these universities that you yourself आपने जो है अपने रिसर्च के बाद ये यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट की हैं? सो बेसिकली ईपॉस प्रोग्राम जो है, जो मैंने आपको लिंक इधर चैट में भेजा है, जो अब नए ज्वाइन कर रहे हैं वो भी प्लीज देख लें, चैट में हमने ज्वाइन किया हुआ है, सॉरी मैंने लिंक शेयर किया है। तो ईपॉस प्रोग्राम के अपने कोर्सेज हैं जो उन्होंने खुद ही एक लिस्ट बनाई हुई है, एंड यू कैन ओनली चूज फ्रॉम दोज प्रोग्राम्स। But there are other programs of DAD scholarship where I think you can choose your own program and then get the sponsorship. But to be honest, मुझे उस process का नहीं पता क्योंकि I was part of the EPOS program, जिसका मैंने link आपके साथ share किया है. So under this program, you have these categories of different fields, और उसके अंदर फिर सब categories अगर आप देखें तो उनके अपने आइडेंटिफाई किए हुए प्रोग्राम्स हैं, तो आप सिर्फ उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और सबुई, जो प्रोसेस होता है इनका डेडलाइन और कितना अरसा लगता है, ड्यूरेशन क्या है जिस टाइम आप डिसाइड कर रहे होते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम पे अप्लाई करना है, और फिर आपका सारा रिसर्च का प्रोसेस और फिर एप्लीकेशन तक पहुंचने का प्रोसेस, क्या टोटल ड्यूरेशन होती है इंटरव्यू तक, लेट्स से? So the first stage for every scholarship or any application, कोई भी आपने एडमिशन लेना है, the first step is your IELTS. IELTS टेस्ट आपका सबसे पहला स्टेप है। So I always recommend to students जो के पूछते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो I think once you have the IELTS तो एटलीस्ट एक चीज आपकी साइड हो जाएगी, ठीक है। तो आफ्टर यू ग्रेजुएट, वैसे भी उसका 2 साल का होता है एक्सपायरी, तो अगर आप स्टार्ट करें आइल्स से, और आइल्स में कोशिश करें कि आपका स्कोर एटलीस्ट 6.5 और 7 से ऊपर हो। 7 हो तो ज़्यादा बेहतर है, पर आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज जिनके 6.5 भी थे, पर दे आर वेरी रेयर केसेस। अच्छा, आपका भी। Mine was also 6.5 for some reason, yes. Yeah, so I think it depends on your proposal और आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट है, और आपके यूनिवर्सिटी के ग्रेड्स भी बहुत मैटर करते हैं, आपका जीपीए कितना है आपके, लेकिन प्लीज इन चीज़ों से डिस्करेज नहीं होना। अगर आपका जीपीए कम है, इवन देन यू कैन अप्लाई, फिर हो सकता है आप दूसरी चीज़ों को ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें ना स्कॉलरशिप में इट्स लाइक कुकिंग अ बिग
बिरयानी का एक बड़ा पतीला लें और जिसमें इंग्रेडिएंट्स जैसे डालते हैं ना, उसी तरह से है ये। तो अगर एक चीज आपकी वीक है तो आपने फोकस करना है कि जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं उनको आपने स्ट्रॉन्ग करना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गॉट 6.5 इन योर आइल्स विच इज ऑन द वीकर एंड, तो आपने देखना है कि आपने अपना पर्सनल स्टेटमेंट कितना स्ट्रॉन्ग करना है। आपने अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं तो दैट विल बी अ प्लस पॉइंट। एटलीस्ट 3 GPA से ऊपर अगर आपका है, या 3.5 हो, तो ऑफ कोर्स ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी। बट मे बी महमूद कैन शेड लाइट ऑन दैट ऑल्सो, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ऑफ माई फेलोज हु वर विद मी इन जर्मनी, जो कि डिफरेंट कंट्रीज में से थे और जिनको DAD स्कॉलरशिप मिली थी। I mean, I cannot tell much about the master programs, but for the PhD for sure. But for me, I never had good marks throughout my, because I'm not the type of student who would read the course subject or something, unless I went to the UK and there I realized that you have to be that type of. तो कैम्ब्रिज में जब मेरा उसका हुआ था एमफिल के लिए, तो उसमें मुझे मार्क्स पे उन्होंने वो क्वेश्चन किया कि आपके मार्क्स नहीं है। तो आई गेस इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन सिस्टम एंड देन दिस rest of Europe system. So these are two different systems that I guess जर्मनी में ये है कि आपका जो वॉलंटियर वर्क आपका सबसे ज्यादा मैटर करता है पर्सनल स्टेटमेंट, कि आप अपने आप को या जस्टिफाई कैसे करते हैं। और फिर एग्जैक्टली। जिस सब्जेक्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके मार्क्स क्या है अंडर ग्रेजुएट में, वो ओवरऑल नहीं देखते, वो सब्जेक्ट से हाँ, रिलेटेड भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली These are some एग्जैक्टली। of the ways that they बट महमूद, आई थिंक इट इज वर्थ मेंशनिंग कि आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट था या जो आपके एक्सपीरियंसेस थे, इन पर्टिकुलरली इन योर केस, दे वर रियली इंटरेस्टिंग। और आपका जो प्रपोजल था, रिसर्च प्रपोजल, दैट आई हैव हर्ड दैट इट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रपोजल्स, सो दैट आल्सो मैटर्स अ लॉट, जब आपकी दूसरे चीजें, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपके दूसरे कंपोनेंट्स थोड़े वीक हैं तो उनमें से एटलीस्ट अगर 5 में से 3 कंपोनेंट्स आपके स्ट्रांग हो, तो जो दो वीकर कंपोनेंट्स हैं उनको वो सरपास कर लेता है। तो आपने ये चीज बहुत स्मार्टली आपने देखना है कि इफ यू डोंट हैव दैट दोज ग्रेड्स, और इफ यू डोंट हैव दैट आइल्स का जो स्कोर है, देन यू हैव टू मेक योर पर्सनल स्टेटमेंट स्ट्रोंगर। और आपका जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपके जो वर्किंग एक्सपीरियंस है, जैसे महमूद ने अभी मेंशन किया कि स्पेशली इन जर्मनी वो लोग ये नहीं देखते कि आपने कितनी बड़ी कंपनी के साथ काम किया है या कितना मल्टीनेशनल किसी उसके इदारे के साथ काम किया है या किसी बड़े NGO के साथ काम किया है। वो ये देखते हैं इवन आपने अगर कम्युनिटी वर्क भी किया है, लेकिन अगर वो रिलेटेड है इस सब से, सो वो उस चीज को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ वन ऑफ माई फेलोज इन DAD program. She was a fresh graduate. She was from Ghana, I guess. Yeah, she was from Ghana. But she just graduated. और उसका जो work experience था, that was only her, उसने कोई social mobilization का काम किया था for I think 2 or 3 months while she was an undergrad student. लेकिन वो उसका इतना strong था और उसके पर्सनल स्टेटमेंट के साथ वो इतना रिलेट कर रहा था कि इट बिकेम हर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। सो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि किसी बड़े इदारे के साथ अगर काम नहीं किया तो शायद कोई वीकर पॉइंट होगा। and to ask questions. So right now, I mean, No, no, just it's on actually the not about the question. Actually, it's about the flow. Can you please, discuss the whole flow of the application process? जो चीज़ें डिस्कस हो रही है वो जाहिर है उस प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कस करते हुए इंडिविजुअली एलिजिबिलिटी हो गया या आप मोटिवेशन लेटर्स हो गए, ये तमाम चीज़ें उस ड्यूरेशन में डिस्कस हो सकती हैं। तो ये इज इट पॉसिबल कि हम इसको एक फ्लो में एक डिज़ाइन करें? आया आप एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरह करते हो, इस फेस में ये करना होता है, यूनिवर्सिटी को we, आपने we किस we तरह are से coming इन्वॉल्वमेंट toward कर, that, तो क्योंकि एक हम एक आज प्रॉपर सिर्फ इसी चीज पे एक फोकस कर रहे
प्लीज अगर एक प्रॉपर रोड मैप होना तो उस हिसाब से फिर हम चीज़ों को विजुलाइज करें। थैंक यू। Sure. Thank you या for. आई थिंक वी विल कम टुवर्ड्स द रोड मैप, लेकिन उससे पहले बैकग्राउंड देना इसलिए इम्पोर्टेंट था कि सिर्फ जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इंटरनेट पे भी जो मिल जाती हैं चीज़ें, उसमें इस तरह की चीज़ें मिसिंग होती हैं कि बेसिकली जो आपने होमवर्क जो करना है ना उससे पहले का, वो आपको समझ नहीं आ रहा होता उसमें। तो वो उस पे भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले ये इम्पोर्टेंट है आपको समझना कि वो प्रोग्राम किस बारे में है, वो स्कॉलरशिप कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, और उसके साथ आपने कैसे अलाइन करना है अपना सारा जो एप्लीकेशन है। ठीक है शफकत, सो आई मीन वी आर ट्राइंग टू फर्स्ट सेट अप द फाउंडेशन। तो क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसेस जो है एक छोटा सा ड्यूरेशन होता है, और वो बड़ा क्लियर, उनके क्लियर कट्स गाइडेंसेस भी होती हैं वेबसाइट वगैरह के ऊपर। जो इसका बैकग्राउंड नॉलेज होता है ये सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि हम दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मास्टर्स का भी और पीएचडी का भी। तो सो वी विल ट्राई टू put a ground so that everyone is on the same page where we are leading to. Is that fair enough? Okay, yeah, let's continue, Saburi. ओके सो वी स्टार्टेड विद द आइल्स, साथ साथ में हम वो सारा रोड मैप भी चलें डेवलप करते हैं। सो वी स्टार्टेड विद आइल्स, देन कम्स द एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द एप्लीकेशन। उसमें बेसिकली जो मैंने आपको लिस्ट शेयर की है उसमें से आप देखते हो कि हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग डेडलाइंस हैं। ठीक है। तो जैसे मेरे यूनिवर्सिटी, मेरा जो कोर्स था उसकी डेडलाइन थी अक्टूबर में। इट वाज 30th अक्टूबर, आई स्टिल रिमेम्बर। 30th ऑफ अक्टूबर में आपने पूरा एप्लीकेशन पैक, एटलीस्ट मेरे कोर्स में ये था कि सारा प्रिंट करके आपको भेजना था, डीएचएल करना था। अब शायद डिजिटली होता होगा, बट आई 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 एम नॉट श्योर, क्योंकि जर्मन्स थोड़ा इस चीज में है कि दे लाइक हार्ड Manual. कॉपीज ऑफ थिंग्स। हाँ। तो नहीं, मेरे ख्याल से अब सारा कुछ डिजिटाइज हो गया एक तरह से। अच्छा, हम्म। अगर डिजिटाइज हो गया तो फेयर इनफ, लेकिन आप शायद ईमेल पे भी सारा एप्लीकेशन भेज सकते हो। बट या, इन अक्टूबर आई हैड टू सेंड द आईएल्स, द एप्लीकेशन फॉर्म, और यूनिवर्सिटी जो यहाँ पे जो लिस्ट में जिस 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 यूनिवर्सिटी के कोर्सेज आपको दिए हुए हैं, उसी वेबसाइट पे आपको डीएडी का एप्लीकेशन भी नजर आएगा। तो आपने दोनों साथ में ही करने हैं। उसी वेबसाइट पे, अगर आप अपने प्रोग्राम के वेबसाइट पे आप देखोगे कि दैट प्रोग्राम इज फंडेड बाय डीएडी, तो आप अपना यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फिल करके भेजोगे उनको, और साथ में आपने डीएडी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी फिल करना है। डीएडी का जो फॉर्म है उसमें वो ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस हैं कि आपको फाइनेंशियल नीड क्या है, आपकी मोटिवेशन क्या है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन है उसमें ज़्यादा आपके फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे अर्बन प्लानिंग का जो मेरा कोर्स था उसमें अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड, उस फील्ड के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इसी तरह आप अगर बिजनेस या किसी और फील्ड में हो तो आपके रिलेटेड एक तो एक स्टेटमेंट होता है, और साथ में कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको फिल करके देने होते हैं। और उन क्वेश्चंस की प्लानिंग जो है वो प्लीज आखिरी दिन पे ना रखें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दोज क्वेश्चंस आर क्रूशल फॉर योर एप्लीकेशन। उनका रिव्यू करवाएं, पहले ड्राफ्ट डेवलप करें, बेशक 2-3 महीने पहले ही स्टार्ट करें ये सारा प्रोसेस। और उनको, अगर बेहतर है अगर किसी को आप जानते हैं जो कि ऑलरेडी किसी स्कॉलरशिप को सिक्योर कर चुके हैं, उनसे रिव्यू कराएं, अपने दोस्तों से रिव्यू कराएं, देखें कि आपका जो पॉइंट है वो क्लियर और प्रिसाइज कैसे बयान हो रहा है।
And in German universities, what I found really interesting was that they really like uh, explanations which are to the point. जो कि फॉर एग्जांपल इन योर पर्सनल स्टेटमेंट, अगर आपके फील्ड के रिलेटेड जो पर्सनल स्टेटमेंट है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप 200 वर्ड्स का एक आंसर लिखें इस सवाल का जो कि आपका फील्ड के मोटिवेशन के बारे में, तो आप शुरू में स्टार्ट करोगे विद अ जनरल प्रॉब्लम, जैसे आप रिसर्च का एक एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। तो आपको बहुत देख के वो सारा ड्राफ्ट करना है। सो यू स्टार्ट विद अ जनरल प्रॉब्लम, देन यू ऐड योर ओन, आप बताते हो कि आपकी क्या अप्रोच होगी उस चीज की तरफ। और फिर सबूरी। आप एप्लीकेशंस की डेडलाइन जो है वो आपने अपने प्रोग्राम के लिंक में देखना है। हर हर प्रोग्राम का अलग से उसका डेडलाइन है। कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके फेब्रुअरी में डेडलाइंस होते हैं। जैसे मैंने बताया मेरे केस में इट वाज इन अक्टूबर। सो यूजुअली डेडलाइंस सितंबर से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं फेब्रुअरी जनवरी, सॉरी, फेब्रुअरी मार्च तक भी जा सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स हाँ जनवरी में भी फेब्रुअरी में भी उनके डेडलाइंस होते हैं। सो वंस यू आर डन विद दैट एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में वो मांग वो उस एप्लीकेशंस के अलावा आपके डिग्रीज मांगेंगे प्रॉपरली। वो क्या कहते हैं उसको, अटेस्टेड, या अटेस्टेड एचएससी से अटेस्टेड। एचएससी की अटेस्टेशन उस टाइम पे चाहिए होती है महमूद या बाद में? इट डिपेंड्स बट या यूजुअली ये आप ये करें कि अपने डिग्रीज को ना टेस्ट करके रखें अपने पास, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर हाँ अप्लाइंग एनीवेयर। इसके दो वो होते हैं। पाकिस्तान के लिए एचएससी अटेस्टेशन जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि आप उसकी इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट है जर्मन जो हायर एजुकेशन है उससे आप इशू करवाएं, तो वो भी एक अलग प्रोसेस होता है उसका। लेकिन हाँ। बेहतर है कि आप एचएससी से अपना जो है सर्टिफिकेट्स अटेस्ट करवा लें पहले से। बट आई रिमेम्बर मेरे एप्लीकेशन में जो मेरी डिग्रीज अटेस्टेड नहीं थी व्हेन आई वाज सबमिटिंग द एप्लीकेशन। लेकिन वंस आई गॉट द एडमिशन, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आपकी इनरोलमेंट तभी होगी जब आपकी डिग्रीज टेस्टेड होंगी, और आपको ओरिजिनल डिग्रीज लेके जानी थी जर्मनी। और Yes. फिर जब आपका मेट्रिकुलेशन होता है विच इज़ लाइक इनरोलमेंट, जो आपकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, उसमें फिर आप ओरिजिनल डिग्रीज उनको देते हो जो आपका अटेस्टेड होती हैं। सो आई रिमेम्बर के अटेस्टेशन का इतना इशू नहीं था जब अप्लाई कर रहे थे। हम्म। सो I'll just add one thing here कि अटेस्टेशन का ये होता है कि it all depends on the university। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ऐसे होती हैं कि वो आपको कहते हैं कि आप कोई ज़रूरत नहीं है इस डॉक्यूमेंट की, अगर आपकी अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट हो तो आप इसी तरह ही सबमिट कर लें। लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको अटेस्ट करवा लें हायर एजुकेशन कमीशन से और अपने साथ लेके आएं। और अगर फिर इंटरनेशनल ऑफिस किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे मांगता है वो अटेस्टेशन, तो आपके लिए मुश्किल ना हो कि आप फिर वापस पाकिस्तान जाएं या फिर वहां से अटेस्ट करवा के इधर लाएं, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। मुझे दोबारा उनके ऑनलाइन पोर्टल जो है एचएससी का उसके थ्रू मुझे दोबारा अटेस्ट करवाना पड़ा, क्योंकि मैं दो तीन डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करके लाया था। या इट्स ऑलवेज बेटर टू बी इट्स ऑन द या सेफ। इट्स ऑलवेज बेटर कि आप आइल्स और एटलीस्ट ये जो एचएससी के अटेस्टेशंस हैं वो एप्लीकेशन से पहले ही करवा के रख लें। और आप अगर एप्लीकेशंस कर रहे हो तो आप उस हैसल में ना पड़ें, बल्कि आप ज़्यादा फोकस करें अपने पर्सनल स्टेटमेंट पे और अपने एप्लीकेशन पे। हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है अबाउट द पर्सनल स्टेटमेंट। सो या पर्सनल स्टेटमेंट में जैसे पहले भी मैंने बताया वो यही देख रहे हैं। आप आपका बैकग्राउंड जो रिसर्च है इसीलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो यही देखते हैं कि आपने होमवर्क कितना किया है उस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में। उसके लिए एक सबसे अच्छी टिप ये है जो कि मैं सबको बताती हूँ कि जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसकी वेबसाइट पे जाएं और उनके कोर्सेज में उनके जो मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको पढ़ाने हैं मास्टर्स में, जो 1 साल का है या 2 साल का है, उसके जो मॉड्यूल्स हैं वो आप देखें।
और जो कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, कोर्स की जो आइडियोलॉजी है, वो सारा वेबसाइट पे वो दे दे रहे होते हैं कि इस कोर्स का मकसद ये है कि हम ये चीज़ें कवर करें। ठीक है। सो यू टेक आउट एटलीस्ट सम ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम दैट, जो कि कोर्स का जो डिस्क्रिप्शन है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालें। फॉर एग्जांपल इन माय केस अर्बन प्लानिंग में उनका एक कंपोनेंट था रिसर्च फॉर्मुलेशन और एनालिसिस। दूसरी चीज़ थी सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्लानिंग। तो ये दो चीजें थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई उस सारे डिस्क्रिप्शन में से। और देन आई फोकस्ड ऑन दैट एंड आई आल्सो मेंशन्ड इन माय प्रॉब्लम सॉरी इन माय रिसर्च, पर्सन। नॉट रिसर्च, पर्सनल स्टेटमेंट। ये पीएचडी करते करते आप रिसर्च ही बोल रहे होते हो। खैर, सो आई आई यूज दोज टर्म्स इन माय पर्सनल स्टेटमेंट और मैंने उसी पे फोकस भी किया। और मैंने बताया कि जैसे इस ये कोर्स जिस तरह से ऑफर कर रहा है कि वो रिसर्च एनालिसिस, रिसर्च फॉर्मुलेशन पे ज़्यादा जोर देगा और सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्लानिंग पे ज़्यादा जोर देगा, तो मुझे ये एलिमेंट्स ही चाहिए अपने करियर में जो कि मैं डेवलप करना चाहती हूँ। और यही कोर्स है जो कि बस मेरा आइडियल हो सकता है, जो कि मुझे इस डायरेक्शन में ज़्यादा मुझे डेवलप कर सकता है। सो आपका जो बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में जो चल रहा है ना रिसर्च, दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। आप रैंडमली ना स्टार्ट करें कि आप एक पर्सनल स्टेटमेंट जब आप लिख रहे हैं तो आप वैसे ही ना स्टार्ट करें। उसमें पहले आप रिसर्च करें, उस कोर्स के वेबसाइट पे जाएं, उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ें, उनकी मोटिवेशंस को पढ़ें, वो कौन से कोर्सेज आपको ऑफर कर रहे हैं आप वो पढ़ें। और फिर उनमें से एक दो एलिमेंट्स भी अगर आप उठा के उनको रेफर कर सकते हैं ना अपने पर्सनल स्टेटमेंट में, तो दैट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट। उनको पता लगेगा कि या दिस दिस पर्सन नोज आवर कोर्स और इसका मोटिवेशन सिर्फ कोई स्कॉलरशिप लेके बाहर आना नहीं है, बल्कि इसका कोई है मकसद, इसको डायरेक्शन पता है और इसने इसी डायरेक्शन में आगे जाने का इसकी मोटिवेशन है। ठीक है। आई जस्ट एड वन मोर थिंग कि मेरे पास आजकल ना बहुत सारे लोग अपने पर्सनल स्टेटमेंट्स भेजते हैं, तो एक ट्रेंड चला हुआ है कि ये जो चैट जीपीटी और इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स है वहाँ पे आप ना एक जनरलाइज टाइप की एक पर्सनल स्टेटमेंट लेके आते हैं, तो मुझे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, क्योंकि इस तरह की जनरलाइज जब आप देंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी ने जनरलाइजेशन के बारे में क्वेश्चन भी पूछा है, तो ये पर्सनल स्टेटमेंट का मकसद ये है कि ये पर्सनलाइज हो। अगर आप जनरलाइज जिस पॉइंट पे करेंगे, इट डजंट इंटरेस्ट एनीवन, नाइदर यू नो नॉट द पर्सन हु इज रीडिंग इट। सो इट शुड बी मोर फोकस्ड। और जैसे सबूई ने मेंशन किया कि आपको थोड़ा सा लिटरेचर ना बैकग्राउंड में चाहिए होगा, कि थोड़ा सा लिटरेचर का या किसी चीज का। जैसे मैं अभी वाहिद ऑक्सफोर्ड में, तो उसका मैं पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें उसने लिखा था कि जब मैं यूएसएस स्कॉलरशिप पे था, तो वहां पे मैंने एक लेक्चर अटेंड किया था एंथ्रोपोसीन के ऊपर। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो उसने एनवायरमेंटल उसमें अप्लाई किया था। तो इस तरह की चीजें ना, कि स्पार्क कहाँ से मिली, तो ये बहुत बड़ी पर्सनलाइज करना होता है हम्म। आपके जो स्टेटमेंट है। तो मेरे ख्याल से ये एक एज भी होता है कि अगर मैं भी किसी का पढ़ रहा हूँ, अगर किसी फील्ड, मेरे फील्ड के अंदर अगर कोई इंटरेस्टेड है, तो मुझे फौरन पता चल जाता है कि इसने कितनी रिसर्च की है, कितना लिटरेचर पढ़ा है, या कितनी बैकग्राउंड नॉलेज है इस बंदे के पास। तो या प्लीज कंटिन्यू। Exactly. Thank you, Mahmood, for adding such an important point. तो इसमें हाँ वही बात आती है कि इसको पर्सनलाइज करना है जितना हो सकता है। मैं आपको अपने ही फील्ड का रेफरेंस दे सकती हूँ, और मैं स्टूडेंट्स के जब मोटिवेशनल लेटर्स जो पर्सनल स्टेटमेंट्स में पढ़ रही होती हूँ उसमें अभी रिसेंटली मैं एक पढ़ रही थी जो कि it was from a student who was an IT specialist, IT के field में. So he connected it to tourism industry and the problems in Gilgit-Baltistan with digitization of tourism industry, which was really interesting to see
कि किस तरह से उसने एक लोकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया कि हमारे जो लोकल टूरिज्म की इंडस्ट्री है वो ज्यादातर फेल इसीलिए कर रही है क्योंकि हम डिजिटाइज नहीं हुए उस तरह से. So he was talking about this big data and how he can incorporate this um, using, after his studies, जो master's course था, then he connected it to that. और फिर उसने मेंशन किया था कि इस कोर्स में क्योंकि बिग डाटा के बारे में है और इट टेल्स यू अबाउट हैंडलिंग बिग डाटा इन बिजनेस वेंचर्स, तो वो उसने कनेक्ट किया था विद गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म इंडस्ट्री. और फिर उसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि उसने मेंशन किया था कि उसके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उसमें ऑफ कोर्स मास्टर्स करना और खुद को एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करना, बट इन लॉन्गर टर्म उसने फिर ये लिखा था कि मैं टूरिज्म इंडस्ट्री को इस तरह से करना चाहता हूँ, सपोर्ट करना चाहता हूँ. ही मेंशन्ड दैट ही वांटेड टू डेवलप एन ऑर्गेनाइजेशन इन गिलगित बल्तिस्तान जो कि इस तरह के छोटे टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स हैं रिलेटेड टू टूरिज्म, उनको बेसिकली सपोर्ट करेगा डिजिटाइजेशन में और उनकी ट्रेनिंग में एंड व्हाटएवर. आई एम नॉट एन Amazing. आईटी स्पेशलिस्ट सो आई डोंट नो दैट मच, बट it was such an interesting, that you tell a story, you actually develop a whole story. तो जब मैं प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन की भी बात कर रही हूँ तो वो जितना भी पर्सनलाइज हो ना तो उतना बेहतर है. um, but let's continue with the application So, set. boy, तो can you फिर see people are on waiting because I can't see. Maybe you are also the host for now, I guess, because someone is no, both sides नहीं अभी waiting में है. अभी I I'm don't not see it here. host. नहीं इधर भी नहीं है. So I'll नहीं make मेरे पास you भी नहीं आ रहा. host for a while, अच्छा. and maybe you Okay. can then see it because Okay, I let's don't see let's see. anything. Yeah. Okay, I'll admit them if they. Yes, now you're Oh the yeah, host. now I can see them. Wait. I don't know why I'm not Okay. able to see. हाँ अब वो ज्वाइन कर रहे हैं. Thank you. ओके गुड. सो ये तो हो गई पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में. सो योर होमवर्क इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. उसका बैकग्राउंड रिसर्च इज रियली इम्पोर्टेंट. और जब आप पहला ड्राफ्ट लिखें तो उसी तरह से ना भेजें, उसको रिव्यू कराएं किसी दोस्त से, किसी फैमिली मेंबर से, किसी फील्ड एक्सपर्ट से. इट हेल्प्स अ लॉट. और दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि उसमें प्रिसाइसली और टू द पॉइंट आपने बात करनी है. और स्टार्ट जो इंट्रोडक्शन है, स्टार्ट विद समथिंग पर्सनल, आइडेंटिफाई. जैसे अभी महमूद बता रहा था कि वाहिद की जो एग्जांपल दे रहा था उसमें ही मस्ट हैव स्टार्टेड विद दैट कि मुझे यहाँ से इंटरेस्ट बिल्ट हुआ जब मैंने वो लेक्चर अटेंड किया, और फिर वहां से वो कैसे बिल्ड करता जा रहा है पूरी स्टोरी. And he ended up with telling the assessors about the longer term goals. तो वो आपका एक छोटा सा एक जो शुरू का जो स्टेटमेंट है वो कैसे वीव होता जा रहा है, and it completes the whole picture. That is the most important part. Okay, so once you are done with the application, and yeah, because we had a question about portfolio also for the architecture students. So urban planning maybe I submitted my portfolio with the application. So application was my portfolio, the two application forms, DAD का or university का, the IELTS result, my transcripts from the university, and some certificates. अगर कोई आपने रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कोर्सेज किए हैं वो आप लगा सकते हैं साथ में जो कि रिलेटेड हैं आपके फील्ड से. उसके अलावा आप अपना जो जॉब एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो आप लगा सकते हो. सो ऑल दीज थिंग्स मेक दैट सेट.
ये सारी आपके कोर्स के जो जो कोर्स है उसके वेबसाइट पे भी आपको सारी मिल जाएंगी, ये सारी रिक्वायरमेंट्स। या सो वंस यू आर डन विद दैट, अक्टूबर के एंड तक जब एप्लीकेशन जमा किया था, तो विद इन आई थिंक 2 मंथ्स आई गॉट द इंटरव्यू कॉल। और मेरा इंटरव्यू हुआ था दिसंबर में, और फिर जाके आपको अगले 2 महीनों में, आई थिंक बाय द एंड ऑफ February आई गॉट द एक्सेप्टेंस फ्रॉम डीएडी और यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हो डीएडी प्रोग्राम्स के लिए, उसमें एक तो आपका है यूनिवर्सिटी का एडमिशन और दूसरा है आपका डीएडी का एक्सेप्टेंस। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें भी हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे देती है लेकिन डीएडी स्कॉलरशिप वाले आपको स्कॉलरशिप नहीं देते। तो ये बहुत कॉमन होता है कि स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं कि यूनिवर्सिटी ने तो हमें एडमिशन दे दिया है, हमें ईमेल आ गई है कि आपको एडमिशन मिल गया है, लेकिन अब डीएडी वाले कह रहे हैं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली। तो उस केस में ईदर यू कैन ऑप्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस, और यू कैन लुक फॉर अनदर स्कॉलरशिप। लेकिन ये भी होता है अक्सर कि जिस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, हो सकता है आपको सिर्फ एडमिशन मिले लेकिन स्कॉलरशिप ना मिले। तो या अच्छा, इसमें आई यह है थिंक कि दैट वाज इट। स्कॉलरशिप के अंदर ना डीआरडी के कुछ वो होते हैं, कोटाज होती हैं हर कंट्री के लिए। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको स्कॉलरशिप भी मिले। अगर उनका या कोटा कंप्लीट होता है तो वो बंद कर देते हैं, या फिर वो मजीद एप्लीकेशंस नहीं लेते हैं, या जो एप्लीकेंट्स टॉप रैंकिंग में होते हैं बस वही चले जाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट साल दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं है कि आपने डिसअपॉइंट होना कि अच्छा ठीक है एडमिशन हो गया। तो आपका एडमिशन, आप अपने एडमिशन को वो ऑन होल्ड भी डाल के अगले साल दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या लेकिन इसके दैट्स लिए राइट। आपको इंटरनेशनल ऑफिस के साथ निगोशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, मैं बार बार इंटरनेशनल ऑफिस कह रहा हूँ, वो इसलिए कि जर्मनी के अंदर हर सिटी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, सिटी टाउन्स के अंदर। और उनका जो आउटलैंडर्स, जो बाहर के लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं अफ्रीका से, एशिया से, या जहाँ जहाँ से, तो उनका इंटरेक्शन डायरेक्टली इंटरनेशनल ऑफिस के साथ होता है। बाकी जो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ को हैंडल नहीं करता। तो इसलिए मैं बार बार इंटरनेशनल ऑफिस, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इंटरनेशनल ऑफिस हर यूनिवर्सिटी के अंदर है और थ्रू आउट जर्मनी इसी तरह एक ही तरह का है उनका सिस्टम। या या सब सो महमूद, आई थिंक वी कैन टेक सम क्वेश्चंस, अगर या आप लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं ताकि yes, हम there was स्पेसिफिक the first question from रिप्लाई। Afaq, and this question is ki, can you apply for DRE if you are already in Europe? So do you think, Sabu, you can or not? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है आप कर सकते हैं। दैट शुडंट बी I अ know प्रॉब्लम। people, those who came from Ukraine war ke baad, or they were already in Europe in a way. So I don't know if they या have an exceptional case, or या was it just normal for them to apply for the scholarship and Oh, not. actually, I know someone from Pakistan who got the DAD after they were in Germany. Yeah, so I guess it's So, possible. yeah, I know someone जो spouse visa पे आई थी, और उनको फिर वहां से जर्मनी से उन्होंने अप्लाई किया था, so she got the DAD scholarship for PhD। तो हाँ, हो सकता है, of course। ठीक है. And the second question is, we already addressed that about personal statement. The third one is from Farina: do architecture program require a pre-existing portfolio, research work, or project, or do we need prior experience in the specific area of architecture we are applying to? So Sabui. So, of course, you definitely need the portfolio। और अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है उस फील्ड में तो गुड इनफ। और ईपोस प्रोग्राम में आई थिंक 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ऑल्सो फॉर द जनरल डीएडी स्कॉलरशिप्स 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हो। सो येस, यू डू नीड द पोर्टफोलियो एंड यू डू नीड द वर्क एक्सपीरियंस। या Acha, Sabui, would you mind, because we already have a group
for scholarships. So me aiding you there, where you can then share the resources that you have at your disposal. Yeah, sure, Okay, sure, thank no you. worries. So I'll be adding after the session, then I can add you to the group. So if someone wants to Sure. reach you out individually, can they? Or Yeah, definitely. okay, thank you. So I guess we don't have any other question, or is there anyone who is willing to कोई just और pop in and सवाल ask their पूछना है? question? So let's just quickly go to the UK side, the Cambridge side of your studies. So I guess we had enough time on this. Just one question. I need scholarship in master's in computer science in Germany, but I don't have work experience. How can I get the scholarship? Well, you can still get the scholarship. It is not about work experience all the time. There are certain scholarship that, for example, the one that Sabui mentioned, इसके लिए आपको particularly 2 साल के experience चाहिए होते, but it's not necessary for every field. Or computer science is like a thing now in the Western Europe or Scandinavia. तो आपको बड़ा आसानी से एडमिशन मिल भी जाता है और फिर एडमिशन के बाद जॉब प्रॉस्पेक्ट्स भी इसके अच्छे होते हैं। तो स्कॉलरशिप के लिए फिर एक दफ़ा आपने एडमिशन अपना सिक्योर कर लिया तो उसके बाद से आप जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये फिर डिपेंड करता है, आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा डीआरडी के, वहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम्स को शॉर्टलिस्ट करके अपने प्रोग्राम को हंट डाउन करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको इतना मजीद इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है जर्मनी के अंदर, जिस तरह से म्यूनिक या ब्रेमन या बर्लिन या जहाँ जहाँ भी बड़े सिटीज़ हैं, हर सिटी के अंदर एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है वो ऑफर होता है। तो टीयू जैसे डॉर्मोंट आप जाते हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी डॉर्मोंट, या टीयू मुंशन, या टीयू कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी, तो उनका सबसे बेस्ट भी होता है कंप्यूटर का जो प्रोग्राम होता है, क्योंकि वो प्योरली स्टेट ऑन यूनिवर्सिटीज़ हैं और अच्छे वो होते हैं। तो इफ़ यू वांट टू एड टू दिस भाई। Yeah, I think you were clear about that. So, um, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही थी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्पेशली कुछ इस तरह के आजकल बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है कि आप कंसल्टेंट के पास जाते हो और कंसल्टेंट्स आपके लिए रिव्यू करते हैं पर्सनल स्टेटमेंट्स को, और आपको एडमिशन आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपको देंगे, वीज़ा में हेल्प करेंगे। टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत ही इजी प्रोसेसेस हैं अगर आप खुद समझें इनको, और you don't need to give money to someone to apply for you। आप अगर खुद थोड़ा सा बैकग्राउंड रिसर्च करें तो इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने अभी तक जितने स्कॉलरशिप्स सिक्योर किए हैं मैंने खुद ही किए हैं। यूके में भी मैंने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था और एडमिशन्स मिल गए थे। सो इट्स क्वाइट इजी, द प्रोसेसेस आर स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप किसी के झांसे में ना आए कि कोई आपको कहता है कि आप इतने पैसे दें तो हम आपकी स्कॉलरशिप लगवा देंगे या आपको ये कर देंगे। सो जस्ट इग्नोर दोज थिंग्स और आप अपना रिसर्च करें और अपना आप देखें कि आप अपना एप्लीकेशन किस तरह से स्ट्रांग बना सकते हैं। लेकिन रिव्यू कराएं डेफिनेटली। किसी ने अगर ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप लिया हुआ है तो उससे रिव्यू कराएं अपने मोटिवेशन लेटर्स को, अपने एप्लीकेशंस को। बट कंसल्टेंट्स को फी देके और ये सोचना कि आपकी गारंटी होगी, कोई गारंटी नहीं है किसी चीज की। थैंक यू सबूई फॉर ब्रिंगिंग इट अप। आई मीन आजकल तो जो है, कल परसों भी मैं एक ग्रुप में देख रहा था कि काउंसिल के थ्रू जो है नोटिस भेज रहे हैं कि आप प्लीज इस तरह Yeah. के ना जाएं। तो ये जो सेशन, इसी तरह के सेशन हम करते हैं वॉलंटियरली। अभी सबूई के पास टाइम नहीं था, लेकिन मैंने बड़ा मजबूर किया कि आप थोड़ा टाइम दे दें हमें, ठीक है। तो ये सेशन करने का मकसद यही है कि ताकि कोई और आपको धोखा ना दे, ठीक है। हम वॉलंटियरली ये कर रहे हैं और ये सिर्फ यही वजह है कि हम आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकें और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन दे सकें, ताकि हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इट्स इंटरेस्ट फ्री। और इसमें सिर्फ इतना हमारा जो मोटिवेशन इतना है कि जिस रास्तों से हमने खुद सीखा है, खुद अप्लाई करते करते यहाँ तक जो पहुंचे हैं, तो यही रास्ता हम दूसरों को दिखाएं कि इट्स पॉसिबल, ठीक है। हर कोई हंट डाउन कर सकता है, बस इसके कुछ मैकेनिज्म से, कुछ तरीके हैं और
यही हम कोशिश करते हैं इस ग्रुप के थ्रू एक्सप्लेन करने की या बताने की। बाकी देखो, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो अमेरिका या यूके चले जाते हैं सेल्फ पे, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सेल्फ पे जो है आपके 40-40 हज़ार वो फीस होती है। जो स्कॉलरशिप पे जाती हैं, आई मीन गुड इनफ कि जो यूके या अमेरिका चले जाते हैं, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड होता है लैंग्वेज के साथ, तो आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो जर्मनी में या यूरोपियन दूसरे कंट्रीज में। लेकिन यूरोप या स्कैंडिनेविया में, वेस्टर्न यूरोप खासकर और फिर स्कैंडिनेविया में, अच्छी बात यह है कि आप बहुत कम लिमिटेड आमदनी में भी यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन फ्री है। फ्री से मुराद ये नहीं कि टोटली फ्री है, आपको कुछ सेमेस्टर फीस, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फीस, इस तरह की कोई 300-400 यूरो जो है पर मंथ, पर सेमेस्टर देना पड़ता है, और पर मंथ भी आपका एक्सपेंसेस अच्छे खासे होते हैं। तो जर्मनी के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने 12,000 यूरो आप कर दिया, पहले 10,000 यूरो था। आपका एक ब्लॉक अकाउंट होता है जिसके थ्रू आप आ सकते हैं अगर आप सेल्फ पे अप्लाई करना चाहते हैं। बाकी ये ना करें कि आप जाके कंसल्टेंट को उस, अगर 12,000 आपने खुद पे करना तो कंसल्टेंट को 14-15 हज़ार दे दें, या इस तरह करके ना आप खुद एक उसमें पड़ जाएं। क्योंकि मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा हुआ है जो बहुत सारे पासमानदा गांव से होते पाकिस्तान से, और इसी तरह कंसल्टेंट के थ्रू वो इधर पहुंच भी जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है यहाँ पे सरवाइव करना, ठीक है, अपनी डेली जो आपका क्या कहते हैं एक्सपेंसेस है वो आप कैसे पूरा करोगे एज अ स्टूडेंट। तो बहुत सारे लोग फिर पढ़ाई वगैरह छोड़ के काम पे लग जाते हैं 1-2 साल के बाद, फिर जैसे उनका प्रोलॉन्ग नहीं होता वीज़ा वगैरह, तो उनको वापस भेज दिया जाता है। तो खैर ये फिर बातें हम करते रहेंगे। तो एक और क्वेश्चन, आई एम कंफ्यूज्ड, अर्लियर यू मेंशन दैट फ्रेश आर्किटेक्चर ग्रेजुएट गॉट एडमिटेड बट नाउ यू आर सेइंग uh, 2 work year experience is required. Can a fresh graduate like me apply? Do I need to gain? We talked about two different situations, two different programs. The one Yeah, and she was from another country. So for you can Pakistan, do it's, that. I guess, 2 years. तो सबोई ने जिस प्रोग्राम पे अप्लाई किया था उसके लिए 2 years। बाकी मैंने जो बताया वो मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि आप बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं कि आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होती कोई एक्सपीरियंस वगैरह Yeah. की। और शायद उसका एप्लीकेशन इतना स्ट्रांग भी था कि कुछ कुछ केसेस में वो इस रूल को भी सरपास कर सकते हैं। तो ये भी आप याद रखें कि जरूरी नहीं है कि जो लिखा हुआ है उसी चीज को वो फॉलो नहीं करते, कभी कभार कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। इन पर्टिकुलर इन हर केस आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि वो अभी फ्रेश ग्रेजुएट थी, लेकिन उसने बहुत सारा वॉलंटियर वर्क किया था और इंटर्नशिप्स किए हुए थे, तो उसके बेस पे उसको एडमिशन दे दिया। दिस इज क्वाइट रेयर, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि आप अपने रूल्स को ही मोल्ड कर दें किसी के लिए। लेकिन हाँ, किया था उन्होंने, बिकॉज हर अदर सेक्शंस वर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, इज द DAD डेट स्कॉलरशिप इज ओनली फॉर जर्मनी? बेसिकली हम ये इसके कहते हैं कि जर्मन एक्सचेंज प्रोग्राम, आउस्ताउश प्रोग्राम, DAAD है, लेकिन जर्मन जर्मन लैंग्वेज में ए को आ प्रोनाउंस करते, तो इसलिए हम बार बार DRRD कह रहे हैं। तो DRD बेसिकली एक स्कॉलरशिप है जो जर्मन गवर्नमेंट का है, और जर्मन गवर्नमेंट ही बाहर से स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं स्कॉलरशिप पे, और जर्मन के स्टूडेंट बाहर जा सकते हैं इसी स्कॉलरशिप को लेके। और अक्सर केसेस में ये होता है कि अगर आप बाहर के स्टूडेंट हो, एज अ फॉरेनर आप जर्मनी में पढ़ रहे हो, तो भी कुछ केसेस में आप एलिजिबल होते हो कि यहाँ से आगे जाके एक सेमेस्टर वगैरह या एक साल के लिए आप बाहर जाके पढ़ सकते हैं। तो सबवे, इफ यू वांट टू ऐड टू दिस। Yeah, so it is for Germany. DAD is yeah, जैसे महमूद ने बताया, इट्स अ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। और एक और चीज मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि DAD स्कॉलरशिप के, आई थिंक DAD स्कॉलरशिप इज वन ऑफ दो स्कॉलरशिप्स तो जो कि आपको एक्सटेंडेड स्पॉन्सरशिप देता है इफ यू हैव अ स्पाउस एंड इफ यू हैव अ फैमिली। शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ रिलेट नहीं करता होगा, लेकिन ऐसे केसेस होते हैं जब आपके पास जब आप मैरिड होते हो या आपके बच्चे होते हैं। तो DAD स्कॉलरशिप में एक प्लस पॉइंट ये है कि इवन आपके जो स्पाउस हैं उनको अपॉइंटमेंट के बगैर
एप्लीकेशन के लिए वो जा सकते हैं, अपॉइंटमेंट मतलब एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए जा सकते हैं टू द एम्बेसी. यू डोंट नीड एनी अपॉइंटमेंट इफ यू आर स्पाउस ऑफ अ डीएडी स्कॉलर. और आप अगर एक दफा आपने रजिस्टर कर लिया एज अ स्पाउस, डीएडी स्कॉलर के जो स्पाउस होते हैं उनको पर मंथ एक स्टाइपेंड मिलता है. अगर आपके बच्चे हैं तो आपको फिर पर मंथ उस तरह से स्टाइपेंड मिलता है. सो आई एम जस्ट शेयरिंग दिस बिकॉज दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल. मैं ये नहीं कह रही कि सबके साथ ये रिलेट करेगा, बट इफ यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड और अगर आपकी फैमिली है तो प्लीज डिस्करेज ना हो ऐसे डीएडी स्कॉलरशिप को चूज करने का. एटलीस्ट मेरा एक इस वजह से भी था एक मोटिवेशन कि वो बहुत सपोर्टिव हैं टुवर्ड्स फैमिली. बिल्कुल। और फिर फैमिली अगर यहाँ पे आके वो लैंग्वेज कोर्सेज वगैरह करना चाहें तो उनको भी वो सपोर्ट कर लेते हैं। और फिर आपका अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन, अगर आपको आपने इस स्कॉलरशिप को हंट किया है तो आपको एम्बेसी में अपना वीज़ा फीस भी नहीं देना पड़ता है, वो भी कॉस्टलेस होता है। तो इन अ या वे एवरीथिंग इज पेड थ्रू द स्कॉलरशिप। या मैं डीमोटिवेट नहीं करना चाह रही, लेकिन एक ये चीज जरूर बताना चाहूंगी कि एटलीस्ट विद इन लास्ट 5 years कंपटीशन जो है वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है. सो यू नीड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर एंड हार्डर. आप अपना रिसर्च करें, अपना होमवर्क करें, और जितना हो सकता है आप अपने स्टेटमेंट्स पे काम करें, आप अपने एप्लीकेशन के क्वेश्चंस पे काम करें. इवन इफ इट्स अ 2 sentence क्वेश्चन, टू सेंटेंस आंसर, प्लीज डू योर होमवर्क और उसको प्रिसाइज और क्लियरली आप उसमें दें. और जितना आप रिलेट पर्सनलाइज कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन को उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आई थिंक एक साल में डीएडी के कोई 16-17 स्कॉलर्स को स्कॉलरशिप मिलती है पूरे पाकिस्तान में से, एटलीस्ट मास्टर्स के ईपॉस प्रोग्राम में. बट पीएचडी में इट्स डिफरेंट. और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन मैं सिर्फ ईपॉस की बात कर रही हूँ. तो कंपटीशन पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो या. देयर इज वन गुड न्यूज़ विच इज़ कि पाकिस्तान का जो HEC है, हायर एजुकेशन कमीशन, इनका भी एक MOU है DRE के साथ। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है, मेरे ख्याल से यहाँ पे आफाक था, वो आफाक खुद भी उसी स्कॉलरशिप के थ्रू है, जो कि इन दोनों के कोलैबोरेशन में है। तो जैसे लास्ट ईयर हमारा वो हुआ था, जो एक गेट टुगेदर होता है पूरे स्कॉलर्स का पूरे दुनिया से, या. तो सरप्राइजिंगली पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 49-50 स्कॉलर्स थे उसमें। तो विच वो. टेल्स लॉट अबाउट कि पाकिस्तान का जो है या. अभी, उनका इंडिया के साथ जरा कोलैबोरेशन बढ़ गया, लेकिन प्रीवियसली पाकिस्तान के साथ HEC के थ्रू भी, फिर इस तरह के जो सेपरेट प्रोग्राम्स है इनके थ्रू भी, तो जनरली पाकिस्तान के कैंडिडेट सबसे ज्यादा होते हैं। या. और आर्किटेक्चर के लिए इन पर्टिकुलर, क्योंकि मेरा अपना फील्ड है तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आर्किटेक्चर के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम है विच इज़ ओनली फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स. उसमें ये होता है कि आप किसी भी आर्किटेक्चर स्कूल में एडमिशन लेते हो एंड देन यू अप्लाई फॉर डीएडी स्कॉलरशिप. तो वो भी एक ऑप्शन हो सकता है विच इज़ particularly for architecture programs. ओके, परफेक्ट, थैंक यू। Okay. Thank you so much, guys. तो एनी अदर क्वेश्चंस? सबूई आपको जाना होगा मेरे ख्याल से। Yeah. So I guess, yeah, we should wrap it up. Thank you very, very, very much for, taking out time for this. And hopefully we will then bring you back again, because we didn't have much time to talk about the Cambridge side and the UK side of your experience. But hopefully we'll bring that to the platform anytime soon. So I hope you're on Yeah. board Thank with you, us. Mahmood. Thank you for this wonderful workshop discussion. और अगर आप लोगों को जो भी questions हैं, you can always reach out. And good luck. Yeah, thank you. I'll be adding Sabui to the group. Okay. So everyone, Thank you. thank you for joining in. And Okay. yeah, hopefully see you in the other session with much more details and much more exciting people on board with us. So yeah, have a good, I mean, the weekend is now coming to an end, but yeah,
Have a good evening. Okay. Bye. Bye. Bye Thank you. bye.